Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? Welcome back to an amazing Umang series, people, where we are starting a brand new chapter for ICC 10, which is refraction through spherical surfaces or refraction through a lens. A very, very interesting chapter. This is your fifth chapter in ICC 10. I'm really glad that we had an amazing Umang series till now. और पिछले मेंटी तो यार आपको पता ही होगा ना पिछले मेंटी में कितने बच्चे थे? पिछले मेंटी में for ICC 10 we had more than 1,000 students participating throughout the country on the Menti quiz, and that was a dream come true for us. We have never had so many ICC 10 students coming up onto our family, and thank you so much. Well, thank you so much. I'm really glad कि हम ICC 10 वाले बच्चों के लिए भी बहुत कुछ कर पा रहे हैं और हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है ना? तो people, welcome back to the session. I really hope always ready for today, है ना? कितने बच्चे ready हैं यार? कितने बच्चे ready हैं? Give me a quick बल्ले बल्ले. Give me a quick बल्ले बल्ले. Yes, of course, I'm not live today, as you can very clearly see. But as I always say, information यहाँ से वहाँ तक जाना जरूरी है. मेरा आना जरूरी नहीं है ना? नॉलेज आपको मैं ट्रांसफर करता हूं, यही बहुत बड़ी बात है कि नहीं बच्चों? तो बच्चों जोरदार हिट द लाइक बटन राइट अवे, सब्सक्राइब द चैनल इफ इन केस यू हैवंट, क्योंकि स्टार्ट करें हमारा आज का नया चैप्टर विद अ न्यू टॉपिक दैट इज नथिंग बट लेंसेज एंड इट्स कंपोनेंट्स. ऑब्वियस सी बात है यार, अब रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस समझोगे तो उसके पार्ट्स भी समझने पड़ेंगे ना. मान लो अमृत सर आपको पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, जिसमें मैं हमेशा लेता हूं एग्जांपल, आपको बताने वाले हैं कि हार्ट कैसे फंक्शन करते हैं, उनका दिल कैसे धड़कता है. जब अमृत सर ये बताएंगे दिल उनका कैसा धड़कता है, वो डायरेक्ट तो नहीं जा सकते ना कि द ब्लड पंप्स फ्रॉम आउटर टू वेंट्रिकल, फिर उसे आर्टरी से घुसती है, फिर यहाँ जाता है, फिर वहां जाता है, वॉल राइट ऑरिकल पहले खुलता है, फिर ये खुलता है. तो यू विल बी लाइक That's not how heart works, sir. हमारा तो दिल ऐसे नहीं धड़कता, हम सांस लेते हैं और धड़क जाता है दिल, ऐसे सोचोगे ना. So that's definitely impossible until unless Amritsar tells you what are the parts of the heart. Once you understand the anatomy of the heart, then only you can understand the function. Correct? Same way lenses का भी एक है ना? तो आपके सामने जब lenses होती हैं, ये बहुत जरूरी है कि अरे वाह कितना मस्त छोटा चेहरा दिख रहा है मेरा. ये बहुत जरूरी है समझना कि lenses के parts क्या है. जब पार्ट समझोगे तभी तो समझोगे कि छोटा चेहरा दिख कैसे रहा है आपको, ये सेम साइज क्यों नहीं है, ये चेहरा बड़ा क्यों नहीं है. क्योंकि अगर मैंने लेंस बदल दिया तब ये चेहरा बड़ा हो जाएगा, तब ये चेहरा तो बहुत बड़ा हो जाएगा. That's what. And that's how you're going to understand today, है ना people? And let me tell you what are the other topics of this chapter. But before that, let's get into a quote today. It's a very beautiful quote. It's one of my favorites. Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose. है ना? कलम ने जो किया वो हो गया भाई, वो जा चुका है वो दिन, उसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप. अब जो आगे आने वाला है उसके लिए प्लान अप करो, उसके बारे में सोचो. लेकिन जब भी पास्ट और फ्यूचर बारे में सोचते रहोगे, अपनी आज की जिंदगी जीना मत भूल जाना. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. These are the parts through which I have divided this entire chapter into, and I've gotten an interesting surprise for all of you guys today, जो मैं आपको बताता हूं. It's a new addition to our chapter division which will help you guys a lot. And look at this. What are the parts? Number first session which we are on today, lenses and their components. Second, refraction through a lens and its focus. Action of lens as a set of prisms. Principal rays for ray diagrams. Ray diagrams of convex lens, ray diagrams of concave lens, sign convention and lens formula. These are the major parts. उसके अलावा I have also got in these 3 extra sessions for all of you guys, which is ICC 10 board problems on lenses. जब हमारा ये पूरा हो जाएगा, साइन कन्वेंशन लेंस फॉर्मूला समझ जाएंगे हम, उसके बाद हम एक डेडिकेटेड सेशन करेंगे फॉर ओनली टेकिंग इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कमिंग फ्रॉम ICC 10 फ्रॉम द टॉपिक ऑफ लेंसेज. A lot of them come, and this time it's gonna increase because the syllabus has been reduced, so other topics should increase, right? So numericals are very high priority this time, so I'm going to take a separate session on that, maybe on Menti for sure. उसके बाद चलेंगे ICC 10 board problems on magnification of lenses, separate session for magnification and their numericals, and also at the end power and application of a lens, which is a part of your syllabus itself. So these two topics, these two sections are taking it extra for all of you guys, so that you can have the best of the numericals possible. Obviously इन सारे चीजों में जहां questions आते रहेंगे, आपको end में Menti मिलता रहेगा, चिंता मत करो. जब भी मैं लाइव आऊंगा Menti तो हो गई, तो चिंता नहीं. ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू आर ग्लैड अबाउट दीस टू टॉपिक्स. सो लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, lenses and their components, and let's talk. So everyone ready for today's session? Give me a quick बल्ले बल्ले right away. Give me a quick बल्ले बल्ले, जल्दी से जोरदार बल्ले बल्ले हो जाए. बल्ले बल्ले पक्का पक्का तारा एकदम. चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये बात समझते हैं कि लेंस होता क्या है, और लेंस को हम लेंस क्यों बुलाते हैं, ग्लास स्लैब क्यों नहीं बुलाते. बनता तो सब ग्लास का ही है कि नहीं? बनता तो सब ग्लास का ही है, तो ग्लास स्लैब भी बुला देते. ग्लास स्लैब आपको पता है कैसे दिखता है ना? सिंपल है, मैं आपको ग्लास स्लैब दिखा देता हूं. मेरे ख्याल से ग्लास स्लैब भी होगा मेरे पास. लेट मी जस्ट चेक. हाँ बिल्कुल है भाई, दिख गया ना मैं कहां से उठाया, यहीं पर रखता हूं ग्लास स्लैब. ठीक है. ये रहा ग्लास स्लैब. करेक्ट.
ये रहा ग्लास स्लैब। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्लास स्लैब एंड अ लेंस? है क्या डिफरेंस? क्या है भाई, क्या डिफरेंस है? इसको भी ग्लास स्लैब बुला लो, इसको भी ग्लास स्लैब बुला लो, या तो इसको लेंस बुला लो, इसको भी लेंस बुला लो, डिफरेंस क्या रह गया, है ना? द डिफरेंस इज प्रीटी सिंपल। फॉर एनी ग्लास पीस टू बी कॉल्ड एज अ लेंस, there should be at least one curve, there should be at least one spherical surface on the lens. I hope you got the point, है ना? I hope you got the point. So this is what lens is. For a glass piece to be called as a lens, there should be at least one spherical surface on the object. So in the glass slab, it's all parallel surfaces. It's a rectangular glass slab. And for God's sake, we call it as rectangular. Rectangle does not have a curved surface. But when we talk about the lens, this is the type of lens which you see. And I'm pretty sure you are able to see that how this lens is curved. Correct? This lens is curved very clearly, right? This lens is curved. This is not definitely a rectangular piece or a straight line. It's curved surfaces, right? So same here. This is also the lens. I'll tell you what lenses these are. Don't worry about it. So as you can see, this is also definitely curved. So for something to be called as a lens, there should be at least one spherical surface on the object. So that's the reason why we don't call glass slab as a lens, because उसमें है होते ही नहीं भाई, करेक्ट? तो आप कोई भी पीस ले लो, कोई भी ग्लास पीस ले लो, अगर उसमें एक सरफेस कर्व्ड है तो उसको हम लेंस कह सकते हैं। ठीक है people, that's the difference between a glass slab and a lens. I hope you guys are clear. Now what are the types of lens? What are the types of lens which I just showed you right now? There are two types of major lenses which are gonna go in detail in this particular chapter, है ना? कौन कौन से हैं? पहला है भाई कॉन्वेक्स लेंस, डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है कॉनकेव लेंस। पहला है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है कॉनकेव लेंस। अब इनको कॉन्वेक्स क्यों बुलाते हैं, इनको कॉनकेव क्यों बुलाते हैं, उस बारे में हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, उनका नाम कैसे पड़ा कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है। तो पहले समझते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, है ना? तो आई हैव द कॉन्वेक्स लेंस विथ मी राइट नाउ हियर, यू कैन सी दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इफ यू नोटिस व्हाट अ कॉन्वेक्स लेंस इज, नथिंग बट दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, करेक्ट? व्हाट अ कॉन्वेक्स लेंस इज, जो लेंस के एजेस होते हैं, आई ट्राई टू ब्रिंग इट क्लोजर टू यू, आई एम प्रीटी श्योर इट विल नॉट बी फोकस बट यू कैन सी वेरी क्लियरली, जो लेंस के एजेस होते हैं ना, जो लेंस के एजेस होते हैं वो बहुत पतले होते हैं। सो सी माई एज ऑफ द लेंस इज गोइंग टू बी थिनर एज कंपेयर टू माई सेंटर ऑफ द लेंस। यू सी द विड्थ ऑफ माई फिंगर्स this much, but at the edges it's this much. See, so at the center of the lens would be bulged out, but at the edges it would be thinner. So it's thick at the center and thin at the edge, and that's what we call it as a convex shape. A convex shape, to be very precise in front of all of you guys, आपने ये 9th पढ़ा ही already. This is a convex shape. This is the convex shape जो flexed out होता है, जो bulged out होता है। उस bulge को, उस flex को हम कहते हैं convex shape. Correct? Similarly, when I talk about concave lens, it would be exactly the opposite. It would be exactly opposite. Convex में अगर center thick है, तो concave में center thin होगा, और जो अगर convex में edges thick है, thin है, यहाँ पे edges thick होगा। Clearly देख लो, ये आपका concave lens आपके सामने है ना। Concave lens का अगर मैं आपको thickness दिखाऊं, आप देख सकते हो, देख लो डिफरेंस, देख लो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बीच में डिफरेंसेस देख सकते हो आप क्लियरली। कॉन्वेक्स लेंस का देख लो आप, जो एज है वो कितना पतला है, लेकिन कॉनकेव लेंस का जो एज है वो कितना ज्यादा थिक है। ये हमने इस बार डिकोडिंग फिजिक्स में भी किया था, शायद आपने देखा होगा जरूर हो, है ना। नाउ लेट मी शो यू थ्रू द फिंगर्स, द विड्थ थ्रू द फिंगर्स। तो ये मेरा एज है, देख लो मेरा विड्थ, लेकिन जैसे मैं सेंटर में जाऊंगा, जैसे मैं सेंटर पे जाऊंगा, देख लो अब वो विड्थ कम हो गया, है ना। जो विड्थ में ले रहा हूं कम हो गया, ये यहाँ पे इतना है, ये कम हो गया, करेक्ट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्वेक्स लेंस एज थिनर एट सेंटर एंड थिकर एट द एजेस, एंड दिस शेप व्हाट वी जस्ट फाउंड आउट नाउ, this shape is, it looks like cave, it looks like a small concave, a caved in structure जो internally bent है, इसको हम कहते हैं concave lens, ठीक है, because this shape is called as concave. Cool people? So these are the two types of lenses, and these are the differences between the structure. This is the structural difference between convex and concave. Obviously हम ray diagrams के बारे में समझेंगे तब उनमें और difference समझ में आएगा, focus के बारे में समझेंगे तब उनमें और difference समझ में आएगा, but this is the structural difference, ठीक है बच्चों। Now let's move on to the, क्या सिर्फ यही दो types of lenses है? The answer is no. There are few more which I'll tell you right now. ICC में इसका description दिया हुआ है, CBSE में तो ये है भी नहीं। These are the types of convex lens. Convex lens, क्या समझाता हूं आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। Convex lens में अगर एक साइड प्लेन होगा और दूसरा साइड कॉन्वेक्स होगा तो हम उसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। एक साइड प्लेन, दूसरा साइड फ्लैट, मतलब प्लेन होता है ना, एक साइड प्लेन दूसरा साइड कॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर दोनों साइड कॉन्वेक्स हो गया तो दो मतलब बाई, BI बाई, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम क्या कहेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस।
एक साइड में प्लेन, एक साइड में कॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स। एक दोनों साइड में कॉन्वेक्स, तो बाई कॉन्वेक्स। अगर एक साइड में कॉनकेव और दूसरी साइड में कॉन्वेक्स, देखो ये कॉनकेव शेप है, फिर ये कॉन्वेक्स शेप है। तो अगर एक साइड में कॉनकेव, एक साइड में कॉन्वेक्स, तो उसको क्या बुलाएंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। थोड़ा इटालियन तरीके से बोलना, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। सेम तरीके से आप कॉनकेव लेंसेज के भी डेफिनेशन ध्यान से देख सकते हो। देखो यहाँ पे एक साइड प्लेन, एक साइड कॉनकेव, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस। अगर दोनों साइड कॉनकेव तो बाई कॉनकेव लेंस, दोनों साइड कॉनकेव तो बाई कॉनकेव लेंस। अगर एक साइड कॉनकेव और दूसरा साइड कॉन्वेक्स तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। These are the types of lenses which are pretty simple to remember because of their shapes. Now, in this chapter हम इन सारी lenses के बारे में पढ़ने वाले हैं। The answer is no. हम सिर्फ एक ही type of lens पढ़ेंगे which is biconcave lens and biconvex lens. इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि these are the lenses which are used most in the most of amount throughout the world. चाहे वो आपके स्पेक्टिकल्स हो, चाहे वो आपके कैमरा लेंसेस हो, मोबाइल फोन लेंसेस हो, जहां पे भी आपके लेंसेस, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप, जहां पे बात होती है, इन बाइकॉन्वेक्स और बाइकॉन्केव लेंस का नाम आता है, उनका काम होता है, बाकी का कम थोड़ा काम होता है। ठीक है, अब उसके अलावा एक और चीज यहां से गोइंग ऑन फॉरवर्ड, जब भी मैं कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस की बात करूंगा, आई मीन बाइकॉन्केव एंड बाइकॉन्वेक्स। ये अंडरस्टूड होना चाहिए। हमें हमेशा बाई कॉन्वेक्स बाई कॉनकेव बुलाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव बुला सकते हैं बिकॉज़ दैट इज बीन द कन्वेंशन फ्रॉम लॉ, दैट इज अंडरस्टूड। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स नाउ। अभी हम समझ चुके हैं कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस दिखता कैसे है, उनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। दिस आर वेरी मच सिमिलर टू मिरर्स। मिरर्स में क्या क्या पार्ट होते थे यार? मिरर्स में क्या क्या पार्ट होते थे? क्या आपको याद है मिरर्स में क्या क्या पार्ट होते थे? मुझे तो याद है भाई। जल्दी बताओ मुझे, चैट में क्या क्या पार्ट्स होते थे? एक होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, यही होता है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होते थे। नाउ इफ इन केस यू आर टेलिंग मी फोकस, मुझे पता है कि अभी चैट में बहुत बच्चे फोकस 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 बोल रहे होंगे। सबसे बड़ी गलती वही है, ये मिसकंसेप्शन है कि फोकस इज अ पार्ट ऑफ लेंस। कहां भाई? फोकस को हम ऑब्टेन करते हैं, फोकस को हम ऑब्टेन करते हैं, है ना। मतलब लाइट जब लेंस के थ्रू पास होती है तब फोकस बनती है आपकी, फोकस को ऑब्टेन किया जाता है, फोकस होता नहीं है लेंस के पास। तो फोकस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेंस, फोकस इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो आई होप ऑल गाइस अंडरस्टैंड दैट। सो फोकस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेंस, तो फोकस को दिमाग से निकाल ही दो। लेट्स टॉक अबाउट द अदर पार्ट्स नाउ। टू अंडरस्टैंड दैट, मैं अभी एक रिलेशन निकालूंगा आपका मिरर्स और लेंसेस में, ताकि आपके दिमाग में बहुत इजीली आ जाए कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। जो भी पार्ट्स मैंने मिरर के मेंशन किए थे उनका डेफिनेशन और यहाँ पे जो डेफिनेशन होने वाला है उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो इस चीज को ध्यान में रखो। ठीक है, शायद पोल भी एक पार्ट है जो मैं भूल गया कहना। लेट्स लुक इनटू इट नाउ। ठीक है, एक मिरर क्या होती है बच्चों? मिरर क्या होती है? फ्रॉम 9th standard ICSE, a mirror is a part of a spherical surface which is then coated to give you a mirror, है ना, which is then silver coated, and the mirror has one spherical surface, you know that right? अगर एक स्पेरिकल ग्लास होता, उस ग्लास को मैंने उठा के नीचे फेंका तो टूट गया, तो एक पार्ट निकल के आ गया, उस पार्ट को मैंने पॉलिश कर दिया तो मिरर बन गया, है ना। सो अ मिरर हैज वन स्पेरिकल सरफेस। व्हाट अबाउट अ लेंस? Clearly a lens has two spherical surfaces. Why is that? Let me show that to you in a very interesting way. Look at this very carefully. इस मिरर को अगर मुझे लेंस बनाना है तो मैं कोटिंग निकाल दूंगा और एक और पार्ट ऐसा रहेगा। What is this? This is a convex lens, है ना, this is a convex shape। तो एक तो सर्कल यहाँ पे ऑलरेडी था, ये दूसरा सर्कल आ गया। Because a biconvex lens has two convexes ना, ये एक सर्कल बनाएगा और ये भी एक सर्कल बनाएगा। तो a lens has two spherical surfaces. Same goes forward with the concave lens. A concave lens also has two spherical surfaces. ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, थोड़ा सिली डाउट है लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब सुनते हैं ना, जब सुनने में आता है आप लोगों से, सर कॉन्वेक्स लेंस का समझ में आता है कि वो दो स्पीयर्स को आप ऐसे कंबाइन करते हो तो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। कॉन्केव लेंस का क्या सर? कॉन्केव लेंस में तो दो स्पीयर जुड़ भी नहीं रहे हैं, फिर कैसे बन जाता है कॉन्केव? वो ऐसे दूर दूर रहेगा, हवा थोड़ी कॉन्केव बन जाती है ना सर, बताओ। बहुत क्यूट लगता है सवाल, मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। जवाब है बहुत सिंपल कि भाई किसने कहा कि दो स्पीयर्स को जोड़ना है लेंस बनाने में? नहीं, लेंस आप एक ग्लास से काट कर निकाल दो। एक सिंपल इस रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक को मैं कॉन्केव का शेप नहीं दे सकता क्या? ऐसे काट के निकाल दो कॉन्केव नहीं बन जाएगा, है ना। कॉन्केव का शेप दे दूंगा लेकिन इतना ही कि वो दोनों शेप स्पीयर्स बनानी चाहिए, इतनी है, ठीक है। That's all. And a concave lens will have two spherical surfaces like that. It is not necessary कि दो स्पीयर को जोड़ के बनाना, नहीं, not necessary. Correct? I hope you got it. Let's get into the parts now. Let's get into the parts of a lens. Listen to this parts very, very carefully.
कॉन्वेक्स लेंस के लिए बता देता हूं, कॉन्केव के लिए बता देता हूं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स का भी सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगी, ठीक है। आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो, मेरे पास कॉन्वेक्स में दिखा देते हैं, देखो ध्यान से। कॉन्वेक्स लेंस में कितने स्फीयर्स हैं? दो स्फीयर्स हैं। तो इन दोनों स्फीयर्स के दो सेंटर्स होंगे, 2f1 2f2, नहीं C1 C2, उनका सेंटर तो C1 C2 होता है ना। यस, वेरी वेल डन पीपल, वेरी वेल डन। 2f1 2f2 नहीं, अभी नहीं, वो रे डायग्राम के दौरान, अब सीधा C1 C2। हाँ, ये कंडीशन और निकालना था। स्फीयर्स के सेंटर को तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बुलाएंगे, 2f1 2f2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मिरर्स के केस में होता था, लेंस के केस में क्यों नहीं होता है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं रे डायग्राम समझा रहा हूं, अभी नहीं, तो इसको सस्पेंस रखते हैं, ठीक है। तो C1 एंड C2, व्हाट इज C1 एंड C2? C1 एंड C2 आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। नाउ व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? जैसा मैंने कहा आपको कि ये जो लेंस है वो दो स्फीयर से बनता है ना, वो दो स्फीयर बनाता है, उन दोनों स्फीयर्स के अपने सेंटर्स होंगे, उनको हम बुलाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो हाउ कैन आई डिफाइन इट? The center of curvature is the center of the sphere of which this lens is made up of. That's it. Simple. First component done. अब अगर सेंटर की बात आ गई, स्फीयर की बात आ गई, तो रेडियस की बात आनी चाहिए, है ना। रेडियस क्या होता है यार? इस सेंटर से अगर मैं जोड़ दूं कोई भी पार्ट, कोई भी पेरीमीटर पे लाइन मार दूं, क्या बन जाएगा? वो रेडियस है ना। ये रेडियस है मेरा, ये भी रेडियस है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर of curvature, so the distance between the center of curvature of the lens to the circumference of the sphere or to the lens, it is called as the radius of curvature. Radius क्या होता है भाई? distance between the center and the perimeter of the circumference, ना, that is radius of curvature. Same here. So radius of curvature is the distance between the center of curvature and the circumference of the sphere or the lens. खत्म। तो ये हो गया आपका radius of curvature भी। इतना लड्डू बोलो, इतना लड्डू। So what are the parts? Number one, center of curvature, which is C1 and C2. These are the centers of the spheres which is made by this particular lens. Number two is the radius of curvature, the distance from the radius of the sphere from which the lens is made. That is also radius of sphere, or the distance between the center of curvature and the circumference of the spheres are also called as radius of curvature. Now comes a very important point called as optical center. अब ये optical center क्या होता है ना? याद होगा आपको, मिरर का एक सेंटर हुआ करता था जिसको हम कहते थे पोल, है ना, जिसको हम कहते थे पोल, विच वॉज द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर। उसके शेप का सेंटर को हम कहते थे पोल। लेकिन लेंसेस पे उसको हम पोल नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। तो ये मेरा लेंस है, लेंस का जो सेंटर होगा, जियोमेट्रिक सेंटर, उस शेप का जो सेंटर होगा, उसको मैं ऑप्टिकल सेंटर कहूंगा। क्या कहूंगा? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो यहां पे पोल नहीं होगी, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर होगी। आई होप यू गाइस गॉट दिस पॉइंट। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों में ऑफ कोर्स ऑप्टिकल सेंटर होगा ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों तो लेंसेस ही हैं। देन कम्स द अनदर पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड एज द अपर्चर। अभी अपर्चर क्या है? सिंपल, द एंटायर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द लेंस। यानी कि अगर ये मेरा लेंस है, तो जितना एरिया आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दे रही है, क्योंकि ये लेंस है, ग्लास मटेरियल, तो उसमें रिफ्रैक्शन जरूर होगी ना, तो द एंटायर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जहां से भी आपको यहां पे रिफ्रैक्शन हो रही है, वो पूरा का पूरा एरिया आपको अपर्चर कहलाएगा, ठीक है। सो दिस एंटायर रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज अपर्चर ऑफ द लेंस। Moving on to the last and the final point of today, which is nothing but the principal axis. Principal axis आपके मिरर में भी था. The imaginary axis that passes through the center of curvature and pole of the mirror was the principal axis. But यहाँ पे क्या होगा? The imaginary line passing through the center of curvatures and the optical center of the lens is called as principal axis. सेम टू सेम 9th स्टैंडर्ड में अगर आपको चीजें याद है मिरर्स की, तो यहां पे भी सेम टू सेम चीजें, कोई और एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। एक एक्स्ट्रा चीज जस्ट फॉर योर नॉलेज में जो मैं कहना चाहूंगा, जो आपके आईसीसी 10th एग्जामिनेशन में एक बार आ गया था, एंड दिस टॉपिक वाज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्सिस। ये एक बार सवाल आ गया था आईसीसी 10 में और बच्चे पूछने लगे थे, सर ऑप्टिकल एक्सिस क्या होता है? ऑप्टिकल एक्सिस नथिंग बट बच्चों, ये ऑप्टिकल सेंटर है मेरा, हॉरिजॉन्टली जो लाइन पास होती है ऑप्टिकल एक्सिस के थ्रू, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ऑप्टिकल एक्सिस होगा अगर मैं वर्टिकली लाइन पास कर दूं ना, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर या तो लेंस के एग्जैक्टली सेंटर के थ्रू, इसको मैं कहूंगा ऑप्टिकल एक्सिस। सो द एक्सिस व्हिच पासेस वर्टिकली थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। ये एक बार आ गया था सवाल आपके आईसीसी 10 में, तो इससे मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके अलावा ऑप्टिकल एक्सिस आपके बुक में नहीं दिया गया, तो चिंता मत करना, ठीक है। So these are the major parts of a lens, people. मैं आपको दोबारा जल्दी समराइज करा देता हूं. I think with that we'll done with the session as well. Center of curvature, center of the spheres of which the lens is made up of.
Radius of curvature is the radius of the sphere of which the lenses are made up of. Optical center is the geometric center of the lenses. Aperture is the entire refracting surface of the lens. And principal axis is the imaginary axis passing through the center of curvatures and the optical center of the lens. And optical axis is the vertical line passing through the optical center of the lens. That's it. We're done with the VIP. Let's go people, let's go. अरे भाई कितने, अरे 20 मिनट के अंदर पूरा सेशन खत्म। क्या बात है। अब हम चलेंगे सीधा वीआईपी पे एंड गुड टू गो। ठीक है, बहुत ही छोटा सेशन और हमने डिटेल में समझ लिया कि लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज के पार्ट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट सेशन में सीधा उतरेंगे हम लेंस में रिफ्रैक्शन कैसी होती है और फोकस क्या होता है। बड़ा मजा आएगा उस लेंस, उसमें बहुत मजा आ गया। ठीक है, तो ये जो सेशन था वो रेलेवेंट था सीबीएसई 10 के लिए भी, आईसीएसई 10 के लिए भी। हालांकि मैंने ये सेशन सीबीएसई 10 के लिए ऑलरेडी कर ही लिया है। ठीक है people, everyone quickly give me the full form of VIP on the chats right now, and if in case you enjoyed the session till now, hit the like button and subscribe to the channel right away and let me know in the comments कितना enjoy किया आपने। अभी मैं आगे बढ़ने वाला हूँ for major 4 questions of your coming from this particular topic in the ICSE 10 examination। मेंटी पे नहीं होगा obviously क्योंकि मैं live नहीं हूँ, तो चिंता मत करना। Try to give me the answer for all this question which I'm asking within 30 seconds। अगर आप 30 सेकंड के अंदर जवाब दे रहे हो तो आप मचा रहे हो, और जो बच्चे इसे एज अ वीडियो देखेंगे, नॉट एज अ प्रीमियम वीडियो बट एज अ जनरल वीडियो देखेंगे, वो बच्चे मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और मुझे कमेंट्स में भी आप लोग ये बताओगे सेशन के बाद कि कितने बच्चों को सारे आंसर्स करेक्ट मिले और क्या आप लोगों ने 30 सेकंड्स के अंदर हर एक जवाब दिया। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई माई सेल्फ पुट हार्ट्स इन एवरी योर कमेंट्स। ठीक है, ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड टू वीआईपी। वीआईपी पूछने से पहले, एज आई ऑलवेज डू, if in case you enjoyed this session people, if in case you enjoyed this session and want to learn in long term perspective, आपको हर एक सेशन, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का अगर ऐसे ही पढ़ना है, मजेदार, देखते हुए, चीजों को फील करते हुए, feeling physics and feeling all the other subjects, if in case you want to do it in long term perspective, give me a quick yes right now in the chat, right now in the comments as well if you're watching as a video. Let me know quickly and I'm pretty sure all of you guys are putting yes definitely, है ना बच्चों? I know you, I know your heart, and because I love you guys a lot, so I know your heart. And also if in case you want to learn it in the amazing way possible without any problems of online education. Now what are these problems I'm going to talk about? I want all of you guys to let me know yes if in case you face the problems which I'm going to put it down now. Number 1 is the doubts. You guys told me, sir, there is no particular place to solve the doubts. So we are facing a place where we don't have a regular place to solve our doubts and it's just compiling. We don't know what to do. Then comes the points of notes. We do not have any place to tell us the notes exactly कि 1 मार्क के लिए कितना लिखना है, 5 मार्क के लिए कितना लिखना है, especially for ICSE 10. Then comes the point of tests and assignments, है ना? Tests and assignments के क्या करें? Practice करने के लिए कहाँ पे जाएं? Especially ICSE 10 board examinations में क्या करें? Then comes the point of competitive examinations like NTAC, Olympiads, etc. चॉइस ऑफ शेड्यूल, हमारे पास शेड्यूल चूज करने का ऑप्शन ही नहीं है, ना ही हमारे पास लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन है कि हम इंग्लिश में पढ़े या हिंदी में पढ़े, कोई मतलब तरीका नहीं मिल रहा हमें, है कि नहीं? So this was a very fundamental set of problems which you were facing. Are you guys facing that issues? At least one of them, few of them, or all of them? Let me know in the chat right now. Let me know what are those problems in the comments as well. If in case you are facing any one of them, as I always said, Vedantu being a company of students, जिस कंपनी को बच्चों ने बनाया है, वेदांतु ने पूरी कोशिश की कि बच्चों के प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट वो पूरी तरह से सॉल्व कर सके। तो आप ही के लिए बच्चों वेदांतु ने हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। हमने ये पूरी कोशिश की, हम आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसके ऊपर आपको और भी बेनिफिट्स देने की कोशिश करें। व्हाट आर दोस बेनिफिट्स? हमने सोचा कि आपको क्यों ये मौका दिया जाना चाहिए कि सिर्फ आप 1 क्लास पढ़ो, 2 क्लास पढ़ो हर दिन। आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि आप अनलिमिटेड क्लासेस पढ़ो, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे। So we are giving the option of unlimited live class people, and that's an amazing thing. And every live class you will have the problems of doubt solved, because in every class यहाँ पे होंगे 2 टीचर्स, एक मास्टर टीचर, एक क्लास टीचर, जो आपको सेशन के अंदर बैठ के जो भी टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का डाउट्स सेशन के अंदर ही खत्म कर देंगे। आपको बाहर जाने नहीं मिलेगा। If in case you have doubts later, you always connected to the teachers through Telegram groups and WhatsApp groups, so that you can have also the email connectivity, so that the teachers solve the doubts. But you make sure that कि डाउट सेशन में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा डाउट्स आते नहीं, क्योंकि कंटेंट बेस्ड होता है ना? जैसे इस सेशन में आपको क्या डाउट्स होंगे, कोई डाउट हुआ होगा तो बता देना, वरना आई एम प्रीटी श्योर कि डाउट्स बहुत कम होंगे, राइट? उसके बाद आती है नोट्स की बात। नोट्स क्या होगा? नोट्स का सीन बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा है। क्यों? आपको टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं कंटेंट को, जो मतलब आज मैंने जो भी लिखा था ना स्क्रीन के ऊपर, उसके साथ डाउनलोड हो जाएगा आपका नोट्स हर एक सेशन के बाद। उसके बाद रिप्ले का तो और भी अच्छा सीन है। रिप्ले में क्या होता है?
जो भी आप रिकॉर्डिंग्स, हर एक सेशन रिकॉर्डेड होता है, ठीक है, और उन रिकॉर्डिंग्स में भी आप क्विजेस और लीडर बोर्ड्स को खेल सकते हो। जैसे कि ये जो सेशन है, इसमें आप क्विजेस लीडर बोर्ड्स नहीं खेल सकते ना, क्विजेस में तो नहीं आप खेल सकते, आपको बस चैट में ऑप्शन देना पड़ेगा। लेकिन प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होता, वेदांतो के प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होता। वेदांतो के प्लेटफॉर्म में क्विजेस होते हैं इवन इन द रिकॉर्डिंग्स, और जितनी बार चाहे आप खेल सकते हो, बार बार खेल सकते हो, दोस्तों के साथ खेल सकते हो, मजा आता रहता है, करेक्ट। सो दैट इज नोट्स। देन कम्स द प्रॉब्लम्स ऑफ टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, है ना, वो भी सॉल्व। आपको हर एक सेशन के बाद, हर एक टॉपिक के बाद, हर एक चैप्टर के बाद असाइनमेंट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेगा, क्वार्टरली टेस्ट होगी, मंथली टेस्ट होगी, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, मचाते रहो, है ना। और इसके साथ आपको मिलेगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, यानी कि आपको पता होगा कि भाई आपने पहले क्या किया था, कैसे किया था, और इस बार कितना अच्छा किया है, और आगे कैसे अच्छा कर सकते हो, अलॉन्ग विद योर वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स, एंड दैट्स एन अमेजिंग थिंग। मतलब कोई आपको बताए कि आपकी स्ट्रेंथ ये है भाई, आपकी वीकनेस है, यही तो चाहिए होता है टॉप करने में, है कि नहीं। उसके बाद बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की। हर एक कोर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगी, वो वेदांतु में सब्सक्राइब करने वालों के लिए एब्सोल्युटली फ्री होगी, आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री होगी बच्चा, एकदम कंप्लीटली, ठीक है। उसके अलावा सारे के सारे माइक्रो कोर्स, देयर आर मोर देन 5000 प्लस माइक्रो कोर्सेज, वो भी आपके लिए फ्री होंगी अलॉन्ग विद द अनलिमिटेड लाइव क्लासेस। माइक्रो कोर्सेज भी आपके लिए फ्री होगी, यानी कि इसका मतलब ये है कि मान लो आप ICSE 10 में, और जैसे मैंने आज मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, और आपको मिरर का रिवाइज करना है, तो आप क्या करोगे, माइक्रो कोर्सेज आर रेडी फॉर दैट चैप्टर, बस जाओ उनकी वीडियोस देखो और उसमें क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करो। सो लाइक दैट मोर देन 5000 प्लस माइक्रो कोर्सेज आर ऑलरेडी अवेलेबल। देन कम्स द पॉइंट ऑफ शेड्यूल। यू हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग योर ओन शेड्यूल, कब क्या कैसे, आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप वो शेड्यूल आप खुद चूज कर सकते हो। यू हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग योर ओन लैंग्वेज, कि आपको इंग्लिश में पढ़नी है कि आपको हिंदी में पढ़नी है। So all this comes down to the personalized attention। पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड है आपके हिसाब से। It is being structured कि आपको क्या पसंद है, आपका शेड्यूल, आपका लैंग्वेज, मतलब इट्स क्रेजी राइट। आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है, माइक्रो क्लासेस करनी है, क्रैश कोर्सेस करनी है, आपकी मर्जी, पूरी की पूरी आपकी मर्जी है। There is no one telling you कि आपको यही करना है। That's more amazing, man. That's an amazing thing. Correct? Very structured. So you can always get into it. And if in case you want to get into it, this is the link, vdnt.in/ytpro। तो अब इस लिंक पे जाना, इस लिंक पे आप जैसे चले जाओगे आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12th ग्रेड तक है, तो आप जो ग्रेड चाहिए चूज करो, क्लास 10 ग्रेड चूज करो, ICSE 10 2021 ICSE चूज करो। ये पूरा वेबसाइट खुल जाएगा, जो मैंने अभी कहा ना आपको, वो वहां पे डिटेल में दिखेगा। आपको पूरा वेबसाइट गो थ्रू करना, प्यार से पढ़ना, इसे सारे FAQs भी है इसमें, पर जब पढ़ लोगे 5 मिनट लगेगा पढ़ने में, जैसे पढ़ लोगे, अगर आपको तसल्ली हो जाए, अगर मेरी जो बातें यहाँ पे रिलेट कर पाओ, आप सीधा हिट और गेट सब्सक्रिप्शन बटन, जैसे गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करोगे ये खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब आता है मेरा तीसरा सवाल। पहला सवाल था मेरा कि आप लोग हर दिन ऐसे पढ़ना चाहते हो, यस। दूसरा, कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है, यस। तीसरा, कि आपको हर एक क्लास एट द चीपेस्ट प्राइस चाहिए, द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस फॉर क्वालिटी एजुकेशन राइट नाउ, है ना। तो उसके लिए वी ऑल्सो हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू ब्रिंग डाउन द क्वालिटी एजुकेशन एट द चीपेस्ट ऑफ प्राइसेस अवेलेबल, ताकि आप लोगों को, आप लोग कहीं से बिलोंग करते हो, कहां से बिलोंग करते हो, आप लोग इसको अफोर्ड कर पाओ। क्योंकि एजुकेशन कैसा भाई जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, करेक्ट। आई होप यू गाइस गेट द पॉइंट। तो वेदांतु ने क्या किया, देयर आर 3 मोड्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, करेक्ट। 1 महीने का है 2700, 3 महीने का है 8100, 6 महीने का है 16200। क्या ये आपको पे करना है? नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट, 8000 का 7000 और 16200 का 11500। See that there's a difference of 4700 here, there's a difference of 1000 here. Is this what you have to pay? No. If you apply my coupon code AKPRO, if you apply my coupon code AKPRO, आपका जो कोर्स प्राइस है वो 1 महीने का 2300 हो जाता है, 3 महीने का 6000 हो जाता है, और 6 महीने का 9800 हो जाता है। That means there's a total discount of approximately 7000 here, there's a total discount of approximately 2000 here, and this is 400 rupees. सर इसमें सबसे बेनिफिशियल कौन सा है वो बता देता हूं मैं आपको। मान लेते हैं यार आपके पास 6 सब्जेक्ट है और उसमें आप हर दिन 8 क्लासेस ले रहे हो, बट अगेन यू हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग अनलिमिटेड लाइव क्लासेस। तो अगर एक दिन में 8 क्लासेस ले रहे हो तो एक हफ्ते में कितने लोगे? देयर आर 6 days इन अ वीक, तो 8 6 48 क्लासेस इन अ वीक। 48 क्लासेस, लेट्स राउंड इट आउट टू 50 क्लासेस, बिकॉज़ मेरे को मैथ्स, आई हेट मैथ्स, आई डोंट नो मैथमेटिक्स, मेरे को मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, इसलिए 50 क्लासेस इन अ वीक ले लिया आपने। बच्चे तो हमारे 60 80 लेते हैं। देन इन अ मंथ हाउ मेनी विल बी? देयर आर 4 वीक्स इन अ मंथ, सो 50 into 4 देयर आर 200 क्लासेस इन अ मंथ। हाउ मेनी क्लासेस? 200 क्लासेस। और भाई कितना पढ़ोगे? और कितना पढ़ोगे भाई? इतना नहीं पढ़ना है ना, करेक्ट। तो आप क्या करो, इन 200 क्लासेस को इस पैसे से डिवाइड करो, तो आपको पर क्लास पैसा मिल जाएगा। तो 1 महीने के लिए कितना मिलेगा? 200 क्लासेस, 3 महीने के लिए 200 into 3 600 क्लासेस, और 6 महीने के लिए आप लोग ले लोगे 1200 क्लासेस। अगेन इंडिकेटिंग आपके पास अनलिमिटेड क्लासेस है, आप सिर्फ 1200 ले रहे हो, इनफिनाइट क्लासेस आपके पास, करेक्ट।
जितने ज्यादा क्लासेस लेंगे उतनी ज्यादा आपकी फ्री बनती जाएगी कोर्स, है ना, सब्सक्रिप्शन आपकी फ्री बनती जाएगी और चीप होती जाएगी जितने ज्यादा क्लासेस लेते जाओगे। मुझे पता है कि आप ज्यादा क्लास लोगे भी, आई नो दैट, आई नो, क्योंकि बहुत मजा आता है क्लासेस में, है ना। अगर आपको टॉपिक पता भी है तब भी आप क्लासेस लोगे, है कि नहीं? ओके, सो वंस यू डिवाइड ऑल दिस यू विल गेट द आंसर लाइक दैट। कंसिडरिंग 8 क्लासेस पर डे, एक महीने के लिए 11 रुपए पर क्लास, 9 रुपए पर क्लास फॉर 3 मंथ्स एंड 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए पर क्लास 8 रुपए। कंसिडरिंग 8 क्लासेस, जितना ज्यादा लोगे क्लासेस, आपकी मर्जी, जितना ज्यादा लोगे ये पैसे और कम आते जाएंगे, विच इज डेफिनेटली लेसर देन योर लेस पैकेट, आवर फेमस डायलॉग है ना। तो ये मैं कहता हूं हमेशा कि आप 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ऐसा 10 रुपए ना ऐसे मत खर्च करो। अगर आप 1 महीने या 3 महीने के लिए वो एक स्नैक नहीं खाओ, कोई एक स्नैक मत खाना, पैसे वसूल। एजुकेशन बाय द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री, फ्री with all that amazing features, right? Well, as I said, go on to vdnt.in/ytpro and the coupon code is akpro and then enjoy. That's it, that's all. यार मैं तो ये सोचो कि 700-800 रुपये तो हम महीने में कपड़े खरीद लेते हैं, बस और क्या बोलूं मैं आपको, है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने, आपके पास 30 सेकंड होंगे इन क्वेश्चन को करने के लिए, तो दिल लगा के करो, बहुत मजा आना चाहिए। तो चैट पे कमेंट्स मुझे इसके जवाब मिलते जाने चाहिए। ये रहा आपके सामने। What is the geometric center of a lens called? Pole, optical center, center of curvature, aperture. आपके पास 20 सेकंड और है। Come on people, I really hope all of you are giving the correct answer. Come on. मैंने वॉच तो पहले वॉच को स्टार्ट नहीं किया मैंने। हे भगवान, तू कितना वक्त, अभी 2:30 बज रहे हैं। हाँ मैं लाइव नहीं हूँ ना, 2:30 बज रहे हैं, लेकिन 2:27, oh my god। करो 10 सेकंड और आपके पास। 2:28 पे फिक्स कर देता हूँ। आजा 2:28 कर लिया। आंसर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। हाँ भाई ऑप्टिकल सेंटर चाहिए। ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। कैसा लिखता है ऑप्टिकल सेंटर? ये आपका लेंस है, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सही है तो बच्चों कांग्रेचुलेशंस। लेंस आर मेड अप ऑफ हाउ मेनी स्फेरिकल सरफेसेस? 0, 1, 2, 3, infinite? Abhishek, what do you guys think? Is how many surfaces the lens is made up of? You have 30 seconds for answer this question as well. चलो चले मितवा, जल्दी 3, 2, 1, the time is up. I'm pretty sure you gave the correct answer क्योंकि भाई शुरुआत से हमने ये बोला है कि the lens is made up of 2 spherical surfaces. Moving on to question number 3 right now. Name the straight line passing through the geometrical center of a lens. अगर आपको 2 सवाल सही आ गए तो give me a high five बच्चा. Give me a high five right now. You have done a fantastic job. You have been doing a fantastic job people. Congratulations. Well done. ठीक है तो पूरा सेशन आपने अच्छे से समझा। ये 2 टॉपिक भी इजीली आ गए। अब 2 क्वेश्चन बाकी और है तो मचाते रहो ऐसे ही। बल्ले people keep hitting the like button if in case you're getting the right answers continuously. Do that and subscribe to the channel if in case you haven't. Name the straight line passing through the geometrical center of a lens. Tangent, principal axis, optical axis, both B and C. Passing through the geometrical center of a lens. Come on, you know this answer. Your time starts in 3, 2, 1 and here it is. Both B and C. Why? Principal axis horizontally passes, optical axis vertically passes. We just studied that right now, right? Congratulations if in case you got it right. Moving on to the last question for today. A beautiful question. Which of the following is plano-convex lens? You have to find out, you have to tell me ki which of the lens is a plano-convex lens. Again a very simple question which I think you can rock it up. You know the answer. Shape आपको बताइए कि इनमें से plano-convex क्या है? नाम पढ़ो। plano-convex मतलब एक साइड प्लेन एक साइड कॉन्वेक्स। देखो ध्यान से, देख लिया? 3, 2, 1 and the correct answer for the last and the final question is A option, because obviously this is plane, this is convex, plano-convex. This is concavo-convex. This is plano-concave and this is convexo-concave. Correct? Congratulations people, you have done a fantastic job. अब मुझे बताओ कितने बच्चों को यहाँ पे हर एक सवाल का जवाब मिला within time. Correct. Give me a quick बल्ले right now if in case you enjoyed that part people. I loved it. बहुत मजा आया. It was a fast-paced, rapid-fire sort of questions ना. तो फर्क नहीं पड़ता है मेंटी पे हो कि नहीं, क्योंकि वो थ्रिल फर्क पड़ता है ना, थ्रिल का मजा आता है। Agree with me? Let me know in the comments. ठीक है तो हर एक बच्चा जो इसको ऐसे वीडियो देखेगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितना मजा आया आज के सेशन में। ठीक है तो बच्चों अरे एक और सवाल है। हाउ मेनी सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस है? 5 सवाल थे। अरे हाउ मेनी सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस है? भाई लेंस के होते हैं 2 स्फीयर्स, तो कितने सेंटर्स होंगे? 1, 2, 3 या 4? जवाब आपको मिल गया होगा ऑलरेडी इन 5,
4, 3, 2, 1 एंड ऑफ कोर्स दो भाई, दो स्फीयर है तो दो ही सेंटर होंगे ना। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। एंड दैट इज द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू गाइस टुडे। और जैसा मैंने आपको हमेशा कहा है कि भाई मेरे को आपको बताना है, कमेंट्स में आपको भर देना है। क्या भर देना है आपको? ये भर देना है कि डू यू गाइस लव मी और लव द सेशन। लेट मी नो, लव द सेशन मी बताना है, ठीक है? अभी बता सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑल्सो लेट मी नो इफ इन केस यू हैव एनी डाउट्स फ्रॉम टुडेज सेशन। एंड ऑल्सो लेट मी नो कि इसका होमवर्क का आंसर क्या, बिकॉज होमवर्क का आंसर जो देगा वो नेक्स्ट सेशन में आएगा स्क्रीन पे, पता है आपको, है ना? मैंने आपको चैप्टर का डिवीजन दिखा दिया था, ये चैप्टर डिवीजन। अगर मैं इस चैप्टर डिवीजन कुछ मिस आउट कर दिया तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं ऐड कर दूंगा अगर रेलेवेंट लगे तो नेक्स्ट सेशन में करने वाले बच्चों की लेंसेज में रिफ्रैक्शन कैसे होती है। अगर ये समझ पाओगे तभी आप रे डायग्राम समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे, है ना? तो विल अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस एंड हाउ फोकस इज ऑब्टेन्ड। ये भी हम करेंगे विद ब्यूटीफुल एनिमेशंस the next sessions and simulations. So we'll guys see you guys in the next session, people. This is the coupon code and that is my link right there. Please note it down right away. And with that, people, I end this session today. Thank you so much for being an amazing set of students as always. बहुत मजा आया ये सेशन पढ़ाकर भी। तो बल्ले बल्ले बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Until meet the next time, this is Abhishek signing off. Enjoy your life. Do not forget to hit the like button, share this video, and subscribe to the channel. I'll definitely catch you later in the next session. Ta-da!